Hello and welcome. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on News X. The headlines this hour. Is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. During a press briefing, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu informs that the Boeing 787 series will be surveilled thoroughly. Hospital authorities confirm that the death toll in the devastating Air India Flight 171 crash mounts to 275. This includes 241 passengers and crew members and those lives that were lost on the ground. Government forms a high-level multidisciplinary committee to examine the cause behind the crash of Air India Flight 171, which was en route from Ahmedabad to London's Gatwick Airport. Air India CEO Campbell Wilson demands a 30-day flight history, registration details of Air India Flight 171, which met with a devastating crash. Prime Minister Narendra Modi is slated to pay an official visit to Cyprus, Canada and Croatia from the 15th to the 19th of June. All eyes on Prime Minister's participation in the G7 summit as well. Iran fires a barrage of ballistic missiles at Israel in retaliation for Israel's surprise attack on its foe's nuclear facilities and military leadership. As per ISRO, India's Subhanshu Shukla along with 3 other astronauts are scheduled to travel to the ISS as part of Axiom 4 commercial mission on the 19th of June. The Civil Aviation Ministry has held its first media briefing after the tragic crash of Air India 171 flight. The briefing was held by Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu and Civil Aviation Secretary Sameer Kumar Sinha. The Air India Boeing 787 Dreamliner flying from Ahmedabad to London Gatwick crashed shortly after takeoff with 242 people on board. The aircraft went down in Meghani Nagar, a densely populated neighborhood just outside the perimeter of the Sardar Vallabhbhai International Airport. Well, thick fumes of smoke rose from the crash site. Amongst the deceased, of course, was the former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani, who was en route to London. Most passengers were Indian nationals, although there were 53 British nationals, 7 Portuguese nationals and 1 Canadian national on board as well. Remember, after the crash, there has only been 1 survivor. Jatin Raval is joining us for more details on this story. Jatin, the Civil Aviation Ministry has held its first detailed briefing after this crash of the AI 171 flight. Take us through the highlights of what the Civil Aviation Minister and the Secretary, Ministry of Civil Aviation said. They, of course, spoke about the investigation, the committees that have been formed, and also the need now to surveil this particular aircraft, the Boeing 787 Dreamliners. देखिए बिल्कुल जो नागरिक जो उड्डयन मंत्री है उनके द्वारा अभी थोड़ी देर पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया था। जिस तरह से जो अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन दुर्घटना का जो मामला जो है वो सामने आया था, उसको लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन किया गया था। हालांकि अभी एक ऐसी बातें भी जो है वो सामने आ रही है कि जो प्लेन जो ये एयरबस थी, जो 787 जो ड्रीमलाइनर जो एयरबस थी, उसका नाम जो AI 171 था, वो अब जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उसकी बुकिंग जो है वो शुक्रवार से ही बंद कर दी थी। अब उसका नाम वो AI 159 यानी कि 159 जो नाम है इसका, वो रखा जाएगा। अब इसको ये बहुत बड़ा ये फैसला है। AI 171 का नाम जो है अब बदल कर 159 जो है वो रखा जाएगा। फिलहाल अभी उन्होंने ये भी बताया कि जांच जो है पूरी तरह से अभी भी जो है वो चल रही है। जांच के बाद पूरा जो रिपोर्ट होगा वो बनाकर जो है वो सामने सबके सामने जो है वो पेश किया जाएगा। जी
कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बने रहिए आप हमारे संग। There are multiple teams in Ahmedabad investigating the crash site, including the NSG, the NDRF, FSL teams as well. Cranes have now reached the spot to remove the tail end of the plane. Cranes have arrived at the crash site. Jatin, what can you share with us? बिल्कुल अभी भी कुछ मलबे हटाने बाकी है और उसी की वजह से थोड़ी देर पहले ही जो है क्रेन को वहां पर जो है वो ले जाया गया, क्योंकि जो मलबा है अभी भी बहुत सारी जगह पे अभी थोड़ी देर पहले ही एक ऐसे में और भी जो दूसरा भी जो मलबा है वो हटाने के लिए, जो भारी मलबा था उसको हटाने के लिए क्रेन को जो है वो साइट के ऊपर बुलाया गया है। क्रेन साइट पर पहुंच चुके हैं। मलबा हटाने की कामगिरी जो है वो चल रही है। माना जा रहा है कि अभी भी वहां से हो सकता है या तो मानव अवशेष या तो मृतदेह मिलने की पूरी गुंजाइश है। उसी की वजह से पूरा एरिया जो है अभी क्लीन करने की जो तैयारियां है वो एनडीआरएफ एसटीएफ की टीम के द्वारा जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल जतिन, बने रहिए आप हमारे संग। According to reports, Air India and Air India Express have decided to discontinue flight number 171 following the Boeing 787 Dreamliner accident that claimed 241 lives in a tragic crash in Ahmedabad. Let me quickly join Jatin Raval for more on this story. Jatin, the airline has decided to retire flight number 171. जो एयर इंडिया है उसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो ये प्लेन जो क्रैश हुआ अहमदाबाद के अंदर मेघानी नगर में, जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना जो है वो सामने आई, उसको लेकर एयर इंडिया ने डिसाइड कर लिया है, ये तय कर लिया है कि अब से AI-1 बदलकर जो है AI-169 जो है वो रखा जाएगा। अब जो AI-171 की नाम से जो फ्लाइट थी उसका नाम अब बदलकर जो है AI-159 जो है वो रखा है, क्योंकि इस तरह से AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के जो फ्लाइट जा रही थी जिसकी दुर्घटना हुई, जिसमें 275 लोगों ने जो है अब तक इसमें जान गंवाई है, जिसमें 242 जो यात्री सवार थे, इसमें से 241 लोगों की मौत हुई है। साथ ही साथ जो वहाँ पर जो रेसिडेंट जो डॉक्टर इंटर्न जो डॉक्टर रह गए थे इसके अंदर इस दुर्घटना में जान गई है। उसी की वजह से एयर इंडिया ने इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया है कि अब से AI-171 का नाम बदलकर AI-159 जो है वो रखा जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। A total of 213 blood samples have been collected by the Ahmedabad Municipal Hospital authorities on Friday for DNA testing as part of the process of identifying the bodies. Authorities have also said they've informed the families of those who were traveling on the Air India flight that crashed. Jatin Raval is live with us on this big story. Jatin, all the families now of the victims of this AI-171 crash have been informed by the airline. Meanwhile, a lot of the DNA samples have been collected, over 200 in fact, Jatin, by yesterday. जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, DNA सैंपल है तकरीबन 269 के ज्यादा जो DNA सैंपल है वो कलेक्ट कर चुके थे और आज भी कुछ DNA सैंपल वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। DNA सैंपल मिलने के बाद स्वयं जो आज सुबह से वैसे तो DNA टेस्टिंग जो है सैंपल जो भी मिल चुके थे उनकी DNA टेस्टिंग जो है आज गांधीनगर के FSL यानी कि फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी है वहाँ पर और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन दोनों जगह पर जो है इसकी जो DNA की जो टेस्टिंग है वो शुरू कर दी गई थी। गृह राज्य मंत्री अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो वहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पूरी बात का जो है वो निरीक्षण किया और जिस तरह से जो DNA टेस्टिंग चला था उसको देखते हुए उन्होंने ये बताया कि ये पूरी फास्ट ट्रैक में ये अभी फिलहाल जो है टेस्टिंग जो है वो चल रहा है और जल्द से जल्द ये DNA जितने भी सैंपल आ चुके हैं इनका जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। Professor of Surgery at BJ Medical College, Dr. Rajneesh Patel has said that results of 6 passengers have come out. Their families have been informed. Out of them, the families of 2 of the deceased have arrived to collect the mortal remains. Jatin, has the hospital now began releasing the bodies to some of those whose DNA samples have matched the families of the victims? जी देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि लोगों के DNA
सैंपल पहले ही जो है वो मिल चुकी है। परसों शाम से ही डीएनए सैंपल जो है वो मंगवाने की बात जो है वो कर दी गई थी, डीएनए सैंपल मंगवाने की शुरुआत कर दी गई थी। जिन लोगों के डीएनए सैंपल जो है वो पहले जो है वो आ चुके होंगे, उन सारे लोगों के डीएनए टेस्टिंग हो चुका होगा, जिनके डीएनए मैच हो चुके होंगे रिपोर्ट आने के बाद। तो ऐसे फैमिलियों को प्रशासन के द्वारा, जो अस्पताल के प्रशासन द्वारा जो उनको बुलाकर जो है उनकी जो मृतकों को, उनके परिजनों, मृतकों के परिजनों को उनकी बॉडी जो है वो देने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हालांकि कल तक अगर बात करें तो कल तक 9 मृतदेह जो है वो सौंपे गए थे। ऐसी बातें जो है वो अभी तक सामने है। ऑफिशियल अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया कि कितनी बॉडी जो है वो दी है, लेकिन 8 से 9 बॉडी जो मृतदेह जो है वो उनके मृतकों के परिवारजनों को जो है अब तक सौंपी गई है। आज हो सकता है अभी थोड़ी देर के बाद जिस तरह रजनीश पटेल का जो बयान आया है डॉक्टर का, तो उसके बाद लगता है कि एम्बुलेंस लगातार हमने देखा कि जो अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो 1200 बेड और ट्रॉमा सेंटर के बीच का जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर तकरीबन 100 से भी ज्यादा एम्बुलेंस जो है वो लगाई गई है। और एम्बुलेंस इसीलिए लगाई गई होगी जब भी जिन लोगों को भी उनका जो मृतकों के स्वजनों की उनकी बॉडी दी जाएगी, उनको उसी एम्बुलेंस में हो सकता है कि उनको वही उसी में बिठाकर जो उनका घर होगा वहां तक एम्बुलेंस में ही उनको ले जाया जाए। ऐसी माहिती जो अभी फिलहाल सूत्रों के माध्यम से कभी ऑफिशियली कुछ भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंसों की कतारें जुड़ी सिविल अस्पताल के अंदर लगी हुई है, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉडी डेट जिन लोगों का डीएनए मैच हो गया होगा, उनको उनके मृतकों के परिवारजनों को उनकी बॉडी जो है वो दी जाएगी और एम्बुलेंस के अंदर ही उनको उनके गंतव्य स्थान तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। The Civil Aviation Ministry has announced that it will conduct extended surveillance of all Boeing 787 aircrafts currently operating in India following the recent Air India crash near Ahmedabad airport. Big news coming in, Jatin. The Civil Aviation Ministry now will scrutinize and surveil all Boeing 787 Dreamliners currently operating on routes within or outside India, Jatin. जी देखिए, बिल्कुल तो एयर इंडिया के जो सीईओ है व्हील्स से कैपेबल व्हील्स है, उन्होंने बताया था कि जो 787 है उनकी पूरी जांच जो है वो की जाएगी। हालांकि अब ऑफिशियल तौर पर जो है वो स्टेटमेंट जो है उनका जो है सामने आया है कि जितने भी 787 जो फाइटर है उनकी पूरी जांच की जाएगी, या तो उनको पूरी तरह से बंद किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो माना जा रहा है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, लेकिन विदेश तक ये सबसे बड़ी अब तक की जो दुर्घटना है वो जो है वो मानी जा रही है। गुजरात में पहले 1988 में एक जो प्लेन है वो क्रैश हुआ था, जिसमें 133 लोगों की जान गई, जहाँ पर 275 लोगों की जान गई है। अभी भी सब जो है अभी भी मृतदेहों को जो है वो जहाँ पर जो अकस्मात हुआ था वहां से अभी भी मृतदेहों को निकाला जा रहा है। हो सकता है इससे अभी भी आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, इसीलिए इसकी वजह से बड़ी गंभीर दुर्घटना को देखते हुए जो ये फैसला जो है वो शायद लिया गया हो, ऐसा माना जा रहा है। कुछ और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है, जतिन। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू has given the high level committee a total time of 3 months to collect crucial evidence, including speaking to key stakeholders and eyewitnesses. So a time frame has been set, Jatin, for this high level committee. 3 months time has been given by the minister. जी देखिए, बिल्कुल राममोहन नायडू जी है, जैसे ही जो अकस्मात हुआ था उससे तकरीबन 2 या 2.5 घंटे के अंदर जो वो जगह पर वो जो है वो तुरंत ही जो है वो पहुंच गए थे। उन्होंने उस वक्त भी ये दौरा जो है वो किया था। उसके बाद जो जिस तरह मैंने अभी बताया था कि उच्च स्तरीय बैठक का जो आयोजन जो है उनके द्वारा किया गया। 3 महीनों का जो समय है वो दिया गया है। उसके अंदर पूरी जांच जो है वो करने के आदेश जो है उनके द्वारा जो है वो फिलहाल दिए गए हैं। लेकिन देखना यह कि इतने समय में किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो निकल कर आती है। जैसे कि जो कैपेबल व्हील्स ने भी 30 दिन का रजिस्ट्रेशन जो है जो एयर इंडिया के द्वारा जो जितने भी जो एयर इंडिया के जो विमानों ने जो उड़ान भरती होगी सभी का रजिस्ट्रेशन कैपेबल व्हील्स में भी जो है वो मांगा है। और साथ ही साथ ये देखना है कि इतने दिनों के अंदर क्या रिपोर्ट जो है वो सारी निकल कर इस पर बाहर आती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स भी जो है वो मिलते हैं। रमेश कुमार विश्वास की जो अकेला जो एक इंसान जो है जो इस पूरी दुर्घटना के अंदर बच आया था, उसने भी बहुत सारी बातें बताई है। देखना है कि आगे
रिपोर्ट क्या आता है और आगे क्या फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। द सिविल एविएशन मिनिस्टर कंफर्म द ब्लैक बॉक्स हैज बीन रिकवर्ड एंड करंटली देयर इज एन इन-डेप्थ इन्वेस्टिगेशन अंडरवे एज इट होल्ड्स एक्सट्रीमली क्रूशियल findings. Jatin, official confirmation coming in from the Civil Aviation Minister. The black box has been recovered. Has its scrutiny begun? हमें बताया था कि ब्लैक बॉक्स जो है वो फिलहाल जो है अब मिल चुका है, उसको रिकवर जो है वो कर दिया गया था। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है राममोहन नायडू, उनका भी जो है वो आ चुका है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर जो है वो कर दिया गया है। और ब्लैक बॉक्स जो है उसी के माध्यम से जो सटीक जानकारियां है, अब तक तो जो है सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही अब बिल्कुल सटीक जो जानकारियां है वो निकलकर सामने आएगी कि क्या इसमें अकस्मात जो हुआ उसकी क्या वजह रही, क्या तापमान जो ज्यादा था उसकी वजह से क्या अकस्मात हुआ, या तो फिर और कोई घटना रही थी, विमान नीचे गिर रहा था उसको बढ़ाने के लिए जो उसको दम देने के लिए उसको जिस तरह से जो रेस आकार बढ़ाया गया उसकी वजह से विमान का पीछे का मलबा जो है वो नीचे की तरफ गया। क्या सारी चीजें जो निकलकर जो है वो सामने आके पावर कम हो रही थी, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था वो सिर्फ अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन अब जब ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर कर दिया गया उसकी में सारी डिटेल जो है वो निकलकर जो है वो सामने आएगी अब। जी जतिन, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। मल्टीपल थियरीज आर क्रॉपिंग अप विद रिगार्ड्स टू द एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश. All of them are being thoroughly investigated as stated during the Civil Aviation Ministry briefing. So Jatin, no conclusion has been drawn just yet. All the theories are being currently investigated. They are all on the table currently, Jatin, as the possible cause behind this crash. जी देखिए, बिल्कुल पूरी जो जांच जो है फिलहाल अभी चाहे वो जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, चाहे आईटी हो, चाहे सुरक्षा एजेंसी, सभी फिलहाल जो अकस्मात की जांच करने में जो है वो क्या किस तरह से ये अकस्मात जो है वो हुआ होगा, क्लियरली अभी इसकी जो है वो अभी भी जो है वो बनाई जा रही है, क्या हुआ होगा किस तरह से, क्योंकि एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है और एक 40 मिनट में ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। सबसे पहले प्लेन जो है वो बाउंड्री वॉल से टकराया, बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद जो मेडिकल कॉलेज का जो परिसर है, जो जहाँ पर मैच का जो भाग आया हुआ था, ऑक्सीजन 4 नाम की जो बिल्डिंग थी, जहाँ पर इंटर्न डॉक्टर रहते थे मेडिकल कॉलेज के, उसके साथ उसके परिवार भी रहते थे, उस जगह पर जो प्लेन गिरा, तो क्या आखिर जो हुआ होगा, ये सारी अभी जांच जो है वो सुरक्षा एजेंसी और एआईटी की भारत जो है वो अभी की जा रही है। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है। Following the crash of Air India flight AY171, efforts are underway to retrieve parts of the damaged plane. Jatin, it's important that all parts of the damaged plane are recovered. Those efforts still continue. जी देखिए, बिल्कुल जो प्लेन के जितने भी जो डैमेज जो पार्ट थे वो फिलहाल जो है वो रिकवर, बहुत सारे पार्ट जो है वो एयर इंडिया के जो दुर्घटना जो हुई प्लेन उससे रिकवर जो है अभी कर दी गई। सारे पार्टों की जो है उससे भी जांच की जाएगी कि किस वक्त ये जो है टेक्निकल इसका पूरा जो है ठीक किया जाएगा, पार्ट जो है वो कौन से पार्ट के अंदर क्या इश्यू आया था, किस वजह से ये पूरी उन्होंने बंद करना कर दिया था, क्योंकि जो पावर कम हो रही थी। तो शुरुआत में जब पावर जो है वो ठीक होगी तभी जो पायलट ने जो है वो टेक ऑफ किया होगा, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद कैसे एकदम से पावर जो है वो कम हो गई, क्योंकि जो वीडियो है आपने भी देखा होगा, सबने देखा कि वीडियो में प्लेन जो है वो टेक ऑफ जो है बिल्कुल सही तरह से कर रहा था, लेकिन थोड़ा ही ऊपर जाते तुरंत ही जो है प्लेन नीचे की तरफ झुकने लगा था, स्टेक होने लगा था। और रमेश कुमार विश्वास नाम का भी जो बंदा है, जो एकमात्र जो यात्री पूरी घटना में जो है वो साक्षी रहा है, उसने बताया कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी थी, प्लेन जो है वो स्टेक करना शुरू हो गया था, डगमगाने लगा था। शुरुआत में प्लेन थोड़ी देर के अंदर ही ग्रीन और व्हाइट लाइन जो है, व्हाइट और लाइट जो है वो अंदर जो है वो ब्लिंकिंग करने लगी थी, यानी कि कुछ तो उस समय जो है वो हुआ होगा कि जिसकी वजह से शायद अनाउंस भी शायद किया गया हो, लेकिन वो बातें अभी तक बताई नहीं गई है शायद, लेकिन हो सकता है कि ये पूरी डिटेलिंग जानकारी जो है वो ब्लैक बॉक्स के द्वारा जो है वो प्राप्त हो सकती है। एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त जतिन। The Chief Fire Officer of Ahmedabad Fire and Emergency Services, Amit Dongre, has reflected on the massive rescue operation
after the Air India plane crash. He has said they saved at least 30 lives. He's stated, and I quote, if we talk about rescue operation, then our team saved almost 30 persons. About 360 personnel were involved to control the fire. There are 19 fire stations here. Every fire station responded. Due to special equipment, we were able to get into the smoke and do rescue. The investigation is going on. One casualty was found today morning. Only after complete work will we leave the operation. It was a very sad incident. The team worked hard. They got support from everyone, quote unquote. So big statement coming in, Jatin, on the rescue operation from the Chief Fire Station Officer, talking about how they saved many lives and about how they worked through the thick fire and smoke. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आग लगी थी, तुरंत ही फायर के जवान जो है वो वहां पर पहुंच गए थे। आपके साथ अभी एक वीडियो जो है वो आया था, उसमें आपने देखा होगा कि फायर के जवान जैसे ही आग लगी थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो तुरंत ही वो है आग के अंदर कूद गए थे और तुरंत ही सभी मैक्सिमम लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो की गई। हालांकि पैसेंजर ट्रेन जो ट्रेन के अंदर तो जितने भी पैसेंजर थे तो वहीं पर जो है वो मौत हो गई थी। लेकिन निकालने की कोशिश जो है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर फायर मैनों ने जो है वो वहाँ पर पहुंच कर जो है वो कर दी। आसपास में तुरंत ही इमरजेंसी कॉल जो है वो घोषित कर दिया गया था। जितने भी आसपास के जो फायर ब्रिगेड है वहां से जो गाड़ियां हैं वो दमकल की वो तुरंत ही मंगा ली थी। तुरंत ही गाड़ियां आप पहुंच भी चुकी थी और बचाने की जो राहत बचाव की कामगिरी है वो तुरंत ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम को आने में काफी समय था। आगे पौने घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची। जी बिल्कुल। Jatin, stay with us. As per a statement issued by the British High Commission of India, the UK has set up a reception centre in the Umaid Hotel to provide support and advice for families and friends of British nationals following the plane crash on the 12th of June. The UK reception centre in Ahmedabad Airport will be open from 9 a.m. to 9 p.m. every day starting today. So, Jatin, the UK High Commission has set up a special centre as well there for British nationals, their families, victims who were in the crash. जतिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए बोलिए, अभी आवाज आई। जतिन, मैं ब्रिटिश हाई कमीशन से जो खबर आई है उस पर पूछ रहा हूं आपसे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से जो ब्रिटिश हाई कमीशन से जो बैठक है हुई है, जिसमें जो कुछ सूचना दी गई है, ब्रिटिश हाई कमीशन के भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि तकरीबन ब्रिटिश नागरिक जो है वो तकरीबन 53 नागरिक ब्रिटिश हाई कमीशन के थे, ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। तो ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग जो है यहाँ पर आए हैं, उनके द्वारा भी फिलहाल जो है वो जांच जो है वो चल रही है। उनके जितने भी लोग हैं उनकी पूरी डिटेलिंग जो है वो यहाँ से जो है फिलहाल वो निकाली जा रही है। जी बिल्कुल। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर हमें मिल रही है। Amidst tight security arrangements, blood samples for DNA are being collected at Ahmedabad Hospital, and from there these samples are being taken to the Forensic University in Gandhinagar. After receiving the report from their, bodies of the deceased will be handed over to their families. So the DNA samples being taken, that process continues today as well, Jatin. कुछ परिवार आज भी आ रहे हैं अपने DNA samples देने के लिए. Take us through what happens. So they give the DNA samples at the hospital. Those samples then are taken to Gandhinagar to a special center. Is that correct, Jatin? जिस तरह से जो डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल परसों ही शाम को बोल दिया गया था कि डीएनए सैंपल सभी परिवारों से जो है वो मंगाए जाए। जितने भी लोग थे सभी लोगों के परिवारों से डीएनए सैंपल जो है वो मंगाए जाए, क्योंकि डीएनए सैंपल काफी लेने जरूरी थे, क्योंकि डीएनए टेस्ट के बगैर जो है बॉडी की शिनाख्त नहीं की जा सकती थी। ऐसी कंडीशन पे जो है वो बॉडी की, ऐसे में अब डीएनए सैंपल जो है वो लगभग परसों शाम तक को भी काफी आए थे, और कल मैक्सिमम जो डीएनए सैंपल है वो जो परिवारजन है वो आकर जो है वो दे गए थे। अभी भी कुछ परिवार ऐसे जो रह गए थे, वो अभी भी बीजे मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर अपने मृतकों जो अपने परिजन की जो डीएनए सैंपल है वो देने के लिए पहुंच रहे। डीएनए सैंपल जितनों की आ चुकी है, इन सभी का डीएनए टेस्टिंग जो है वो
सैंपलों को यहाँ से लेकर जो है वो FSL गांधीनगर जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहां पर ले जाया जा रहा है और वहां पर उसका टेस्टिंग जो है किया जाएगा और टेस्टिंग होने के बाद जैसे ही रिपोर्ट उसकी आ जाएगी, बॉडी की शिनाख्त हो जाएगी, उसको तुरंत ही जो है जो परिवारजन है उनको कांटेक्ट किया जाएगा और उनको अपने परिवारजन की जो बॉडी है वो उनको जो है वो सौंप दी जाएगी। जी। My colleague Shahid Ansari has sent us his ground report. Let's quickly play it out. I think this ground report is also from very close to the crash site. जय हादसा जहां मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में, यहाँ पे जब विमान हादसे का शिकार हुआ है तो आपको पता होगा कि वहाँ जो कैंटीन में बैठे थे 33 डॉक्टर भी मौत के मुंह में चले गए। अब जो है जो डॉक्टर यहाँ रहते हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है। उसके बाद से तो यहाँ हर एक को मना कर दिया गया है, लेकिन अब उसके बाद से यहाँ उन डॉक्टर्स को इजाज़त दी गई है कि वो अपने सामान वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर लें, क्योंकि जांच जो है यहाँ से लंबी चलने वाली है। तो हमारे साथ वो डॉक्टर यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब ये हादसा पेश आया? मैं तो डिपार्टमेंट में ही था, अपने ऑन्कोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो अभी आप लोगों को यहाँ अंदर इजाज़त दी गई जाने की? कुछ लोगों को दे रहे हैं। किस लिए? सामान लेने के लिए। तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं ऑन्कोपैथोलॉजी DM फाइनल ईयर स्टूडेंट। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आज आपको इजाज़त दी गई अंदर जाने की? हाँ, थोड़े हमारे जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स ने तो सामान है वो लेने के लिए बोला है। बाकी बाद में शायद और इजाज़त दी जाएगी। जो मेन सामान है जैसे काफ़ी कुछ बड़े बड़े जो सामान है जैसे अलमारी, वॉशिंग मशीन, वो सब जो है बहुत लोगों का बहुत कुछ सामान है। यस, बहुत सारे रोज़ में वाले डेली नीड्स बहुत ज़्यादा है। बट अभी के लिए तो बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स है वो लेने के लिए बोला है। हादसे के वक्त आप कहाँ थे जब ये हादसा पेश आया था? तो मैं OPD में काम कर रहा था। मैं सर्जिकल कैंसर में हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। आपको क्या अपने दोस्तों ने बताया कि ऐसा? हाँ, हमको फ़ोन आया कि उधर से आग लगी हुई है। तो उसके बाद से तो फिर आप लोग को यहाँ जाने की तो इजाज़त नहीं थी? नहीं, इजाज़त नहीं थी। तो ये आप भी जो है यहाँ यहीं के डॉक्टर? मैं इधर ही थी, अतुल्यम 3 में हूँ। मेरा रूम भी पीछे से पूरा जल गया है, सामान भी बहुत सारा जल गया है। अभी जितना सामान जो हम बचा सकते हैं वो लेने आए हैं हम। रूम अलॉट कर दिया हमको पुरानी बिल्डिंग में, तो जितने भी कपड़े हैं जो भी हैं वो हम ले जाना है। आपको इस हादसे की जानकारी कब हुई थी? कल ही जब दोपहर में हुआ, हमको बोला कि आग लगी है, तो हम लोग तुरंत भाग के आए। कि हमें पता नहीं था कि प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा ही ब्लास्ट हुआ है। फिर हमको अंदर आने नहीं दिया, हमने बस बाहर से बिल्डिंग जब जल रही थी तब हमने देखा। फिर हमको वापस भेज दिया। हमें रूम के लिए अरेंजमेंट करा हम लोगों के लिए, पर अभी फिर कुछ सामान नहीं है हमारे पास, तो वही जितना कुछ जो बच गया हम लेके जाएं, रहना है तो है। तो अभी इसी बात की इजाज़त ली है कि आपके जो इस्तेमाल होने वाले सामान है वो सब आप ले जा सकें। ये हादसे में जो 33 लोग जिन मौत के मुंह में चले गए, उनमें से कोई आपके भी तो जानने वाले लोग रहे होंगे? हमारे GCRI में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एक जूनियर था, मैं सर्जरी में, उनकी मदर थी साथ में अंदर, तो वो हॉस्पिटल में था, तो उनकी मदर की डेथ हुई ऐसा सुनने में आया है। बाकी और GCRI से तो नहीं हुआ है। बाकी जो UG हॉस्टल में वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई है। आखिरी सवाल है मेरा, उस वक्त आप कहाँ थी जब ये? मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो इसलिए मैं शायद बच गई। तो ये हैं वो डॉक्टर्स जो अभी जा रहे हैं अपने सामान लेने के लिए। आपको मैं बता दूं कि उस वक्त जो लोग मौजूद थे यहाँ कैंटीन में खाना खा रहे थे, और उस दौरान जब ये हादसा पेश आया, हालांकि बहुत सारे वो लोग जो दूसरी जगह पे जो अपने प्रैक्टिस कर रहे थे या दूसरी जगह हॉस्पिटल में थे, तो वो लोग जो है इस हादसे के शिकार नहीं हुए क्योंकि वो यहाँ नहीं थे। अगर हो सकता है कि उस हादसे के दौरान ये जो भी यहाँ होता वो भी इसका शिकार हो जाता, तो वो लोग जो है अभी खुशकिस्मत हैं कि जो वो यहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती को क्या कहिए कि जो यहाँ मौजूद थे और उस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। More news coming in this hour. In one of the largest recoveries in recent months, Manipur Police, along with Central Armed Police Forces, the Army and Assam Rifles, has seized a massive cache of arms, ammunition and explosives in a series of coordinated intelligence-based search operations carried out across 5 valley districts on the night of the 13th and 14th of June 2025. Now, based on specific intelligence inputs regarding the presence of large stashes of warlike stores in the outskirts of the valley districts, simultaneous operations were launched across multiple locations. The joint teams recovered a staggering 328 firearms in these searches. Nibir Deka is joining us for more on this story. Nibir, big recovery in Manipur. Well, yes, Uday, this is one of the biggest recoveries done in Manipur, jointly done by the CAPF, the Army, the Assam Rifles, along with the
Manipur police, and one of the biggest recoveries in recent months. And these are done based on specific intelligent inputs, regarding the presence of large stashes of warlike stores in the outskirts of the Valley district, and simultaneous operations were launched across multiple locations, which has led to the recovery of 328 firearms. And further, the Manipur police has hailed the operation as a major success in the ongoing mission to restore peace and normalcy in the state of Manipur. Nibir, thank you for joining us with those updates. Let's slip into a short break on that note.